Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School. And in this video, that is day 9 of this playlist, we are going to see coin change problem type 1. That is in which we have to calculate maximum number of ways. Okay, so अभी problem statement हम लोग discuss करेंगे, but this would be the last और second last problem in this knapsack variated problems. ठीक है, तो ये भी एक knapsack का ही variation है और ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है जो हम knapsack में देखने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रॉब्लेम्स डीपी की शुरू करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू रिगार्डिंग न्यूटन स्कूल, सो let's just see that. Okay, so basically Newton School, which is an learning platform, is going to organize a grand coding contest for you in this month only. Okay, so if you want to participate in this Newton School grand coding contest, you can just participate for free. Okay, you don't have to pay even a single penny. Just go to newtonschool.co, log in or sign up for free and register for free in this grand coding contest. Okay, and there are special prizes for cash prizes for all the winners and job opportunities for top rankers in the list with top brands. Okay, and many exciting gifts also. So there are like prizes of HomePod Mini and Amazon Echo Dot. Okay, first prize is 50k, second is 25k, third is 15k, and fourth and up to fifth ranker will also get the prize. Okay, so just go and participate in this grand coding contest for free. 5 lakh exciting prizes, and there are many other services of Newton School also, like pay after placement program, launchpad initiative, and most amazing services, Newton School and master's degree program of computer science from abroad, in which they have tie up with MIA Digital University of Spain. Okay, so if you want to know about any of these programs, just go to newtonschool.co and check there all those programs. Okay, one more thing we have is, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen in Newton School, just go and subscribe this channel where we have different playlists for you, like absolutely for free, and all the content is authentic. Okay, so like right now we are moving in dynamic programming playlist. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 6 से 7 knapsack के वेरिएटेड क्वेश्चंस देख लिए हैं और हमने ऑब्वियसली पहले प्रॉब्लम में ये देखा था कि डीपी को हम समझते कैसे हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स जैसे हमें डीपी की प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, knapsack का वेरिएशन। ठीक, फाइन। तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम, सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या। हमें गिवन अ वैल्यू ऑफ n if we want to make changes for n cents. Okay, and we have infinite supply of each of s1 s2 sm valued coins. How many ways can we make the change? The order of coin doesn't matter. ठीक है, तो अगर मैं easy words में बोलूं प्रॉब्लम, तो we have some like n rupees. Okay, and we have n changes coins. ठीक है, like 1 2 5 10 50. ओके, हमारे पास इस तरह की कॉइन्स हैं एंड हर एक कॉइन की इनफाइनाइट सप्लाई है। ठीक है, लाइक 1 की 2 की 5 की 10 की 50 की, सबकी इनफाइनाइट सप्लाई है और हमें ये बताना है कितने नंबर ऑफ वेज से ये n को इन कॉइन्स में डिफाइन कर सकते हैं या फिर n सेंट्स को चेंज कर सकते हैं इन कॉइन्स में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से मेरे पास n की वैल्यू 10 है और मेरे पास कॉइन्स कितने हैं, 1 5 एंड 2 के। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल नंबर ऑफ वेज बताता हूं, लाइक 2 + 2 + 2 + 2 + 2। एक वे हो गई मैं 2 2 के 5 कॉइन्स ले लूं। ठीक है, एक वे हो गई कि मैं 5 5 के 2 कॉइन्स ले लूं। ठीक है, एक वे हो गई कि मैं 5 का एक कॉइन लूं और बाकी कॉइन 2 कॉइन में 2 2 के ले लूं। ठीक है, और एक कॉइन बचा हुआ 1 का ले लूं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल 3 वेज थी, ऐसी और भी वेज हो सकती हैं। हमें वही आउटपुट बताना है, टोटल कितनी नंबर ऑफ वेज हो सकती हैं। ठीक है, लाइक x है तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बतानी है। ठीक है, फाइन। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू जज दैट दिस इज अ knapsack वेरिएशन, और किस टाइप का knapsack है, 0-1 knapsack है या फिर फ्रैक्शनल knapsack है या फिर हमारा अनबाउंडेड knapsack है। ठीक है, तो इन तीनों की हमें ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पता है। 0-1 knapsack में क्या होता था, फाइनाइट सप्लाई होती थी हर एक वैल्यू की और हमें वैल्यू बनानी होती थी। ठीक है, knapsack की लिमिट दी होती थी।
अनबाउंडेड नैपसैक में क्या होती थी, एक लिमिट दी होती थी नैपसैक की, है ना, एंड हर एक आइटम की, इफ आई से हर एक आइटम की इनफाइनाइट सप्लाई होती थी। तो अगर तुम यहां से देखो कि अनबाउंडेड नैपसैक का जो था कि हर एक आइटम की इनफाइनाइट सप्लाई और एक नैपसैक की लिमिट, तो क्या तुम इससे रिजेंबल कर पा रहे हो इस क्वेश्चन से? हर एक कॉइन की हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सप्लाई है और हमारे पास एक लिमिट गिवन है ना, एक लिमिट गिवन है और हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बतानी है। तो वी कैन से कि हमारी काफी सारी प्रॉपर्टीज अनबाउंडेड नैपसैक से मैच कर रही हैं। तो फॉर अभी के लिए हम क्या बोल देते हैं कि ये अनबाउंडेड नैपसैक का वेरिएशन है, ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको अनबाउंडेड नैपसैक ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, मैंने अनबाउंडेड नैपसैक में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अनबाउंडेड नैपसैक डायनामिक प्रोग्रामिंग 4th डे वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आई सीरियसली रिकमेंड यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, और वहीं पे आपको इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। तो नाउ व्हाट आई से इज, मेरे पास एक वैल्यू ऑफ n है, यू कैन से दिस एज लिमिट, मैंने बोला कि अनबाउंडेड नैपसैक है, ठीक है, और मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, कॉइन्स एरे एक मेरे पास, ठीक है, और इस कॉइन्स एरे में मेरे पास S1, S2, S3, S4 अप टू Sn है, ठीक है, फाइन, Sm बोल लो इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आई कैन से कि मेरे पास m नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, और मेरे पास टोटल लिमिट या फिर यू कैन से n मुझे बनाना है इन m नंबर ऑफ कॉइन्स का यूज करके, और मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज बतानी है। तो हमने नैपसैक में एक इस तरह का भी वेरिएशन देखा था, और वो वेरिएशन क्या था अगर आप रिसेंबल कर पाओ, काउंट ऑफ सबसेट सम, ठीक है। अब ये आपका असाइनमेंट छोड़ रहा हूं मैं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाओ, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जाओ देखो, और इससे भी बहुत हद तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको नैपसैक कैसे बोलते हैं ये देखते हैं, और फिर हम इसका सीधे टॉप डाउन अप्रोच लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फाइन। तो इसका अगर हम चॉइस डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हमें हर कॉइन में आना पड़ेगा, ठीक है, हर कॉइन में हमारे पास दो चॉइसेस होंगी कि इफ वी हैव टू, हम इस कॉइन को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, ओके, तो इफ वी हैव टू इंक्लूड दिस, इफ वी कैन इंक्लूड दिस कॉइन, और इफ वी हैव टू एक्सक्लूड दिस कॉइन, ठीक है। अगर हम एक्सक्लूड करेंगे इट मींस अब तो इसका कुछ आगे हमें करने ही नहीं बचा, ठीक है, हम इस S1 कॉइन को सिंपली एलिमिनेट कर देंगे एंड वी विल गो फॉर रेस्ट ऑफ द कॉइन्स, ठीक है। अगर हम इस कॉइन को इंक्लूड करेंगे, दैट इज इफ वी कैन इंक्लूड दिस कॉइन, तो फिर से अगेन दो चॉइसेस आती हैं, इफ वी आर इंक्लूडिंग, रियली इंक्लूडिंग दिस कॉइन, दैट इज यस, एंड इफ वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस कॉइन, दैट इज नो, ठीक है, फाइन। इफ वी आर रियली इंक्लूडिंग दिस कॉइन, इस केस में क्या तुम्हारा S1 कॉइन आफ्टर कंसीडरिंग, क्या ये S1 कॉइन एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन से? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम एक कॉइन को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इस सपोज इस केस में हम टोटल सम जो बना रहे हैं वो J बना रहे हैं, ठीक है, फॉर करंट स्टेट, ठीक है, हमारे जो हम सम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज कैपिटल N की वैल्यू J, ठीक है, हम J बना रहे हैं, और हम इस कॉइन को इंक्लूड कर लिया, हमने इस कॉइन को, ठीक है, हमने इस कॉइन को इंक्लूड किया, और हम कह रहे हैं कि इस कॉइन को दैट इज S1 को इंक्लूड करने के बाद जो हमारा सम है वो J बन जाएगा। तो इनिशियली हमारा सम कितना रहा होगा, J माइनस S1, ठीक है, और इनिशियली भी कितने कॉइन्स यूज हो रहे थे, टोटल I, ठीक है, करंट स्टेट के लिए सपोज नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो हमने I यूज किए हैं, ठीक है, और J माइनस S1 SI कर लो इसको, ठीक है, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मैं डीपी एरे में दिखाऊं, डीपी ऑफ I एंड J, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हम J सम बना रहे थे और हमने टोटल I वैल्यूज यूज कर ली हैं, ठीक है, जिसमें हमने I को ही इंक्लूड किया है, मैं ये वाली चीज लिख रहा हूं, उसमें इसका टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या ऐड हो जाएगा, ये वाली वेज, डीपी ऑफ I J माइनस S ऑफ I। अब ऐसा हुआ क्यों, ये देखो कि
मैं करंट वैल्यू को इंक्लूड कर लिया मैंने, टोटल वेज मेरी आई हो गई, ठीक है। और जे मेरा क्या था, अब मेरा सम, तो जे सम बनाने की कितनी वेज हो जाएंगी, जितनी वेज से मेरा जे माइनस एस वन बन रहा होगा, एस आई सॉरी, ठीक है। सपोज मैं अभी सम बना रहा हूं 7, ठीक है, और जो करंट मेरा कॉइन है एस ऑफ आई की वैल्यू है मेरी 4, ठीक है। और मुझे ये पता है कि मेरी 3 सम बनाने की, सम या फिर कैपिटल एन 3 बनाने की मेरी नंबर ऑफ वेज कितनी है, सपोज n इज इक्वल टू 3 बनाने की मेरी नंबर ऑफ वेज 11 है, ठीक है। उन सारी नंबर ऑफ वेज में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरी नंबर ऑफ वेज 7 बनाने के मिल जाएंगे मुझे। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज फिर से बोल रहा हूं n इज इक्वल टू 3 था और मुझे ये पता था कि n इज इक्वल टू 3 बनाने की नंबर ऑफ वेज कितनी है, 11 है, ठीक है, 11 वेज। अगर मैं उन सारी वेज में एस आई इज इक्वल टू 4 ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज 7 बनाने की कितनी हो जाएंगी, 11, है ना। तो यू कैन से कि डीपी ऑफ 7 में मैंने डीपी ऑफ 3 ऐड कर दिया, ठीक है। और सेम चीज हमने यहां पे भी की है, ठीक है, फाइन। सेकेंड चीज, सेकेंड वाला केस मेरा क्या है, नो, ये तो मैंने जब मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा था, जब मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा था, ठीक है, जब करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा था तो मेरा यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो क्या चेंज होगी, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। तुमने अगर अनबाउंडेड नैपसैक की वीडियो और पिछली नैपसैक की वीडियोस देख रखी है तो बहुत इजीली गेस कर लोगे कि अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा था करंट एलिमेंट को तो मेरा सम तो सेम रहेगा, सम में मेरा चेंज आएगा नहीं, तो मैं इसमें क्या सिंपली कर दूंगा, एड डीपी ऑफ आई माइनस 1 एंड जे। अब मैंने ये ऐड क्यों किया, आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सपोज अब मैं 7 बना रहा था, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे ये इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो एक केस तो मैंने इसमें 11 नंबर ऑफ वेज ऐड कर दी जब मैं करंट एलिमेंट एस आई इंक्लूड कर रहा था, और जब मैं करंट एलिमेंट एस आई इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, तो यू कैन से कि जो मेरा प्रीवियस सम टोटल नंबर ऑफ वेज जो ऑलरेडी 7 बनाने की थी वो भी तो यहाँ पे ऐड होंगी, है ना। सपोज ऑलरेडी 7 बनाने की वेज थी मेरे पास 6, तो वो 6 वेज भी इसमें ऐड होंगी। जब मैंने करंट एलिमेंट को इस 7 में ऐड नहीं किया तो ऑलरेडी जो मेरी जितनी नंबर ऑफ वेज थी जिससे मेरा 7 बन रहा था वो भी तो इसमें ऐड होंगी ना, तो इसी तरह का ये कुछ है, ठीक है, फाइन। तो करंट डीपी ऑफ आईजे की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो डीपी ऑफ आईजे अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। डीपी ऑफ आईजे, डीपी ऑफ आईजे का मतलब है कि मैं टोटल आई एलिमेंट्स को यूज करके जे सम बनाने की नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं, ठीक है, फाइन। इसका इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी आप लोग बहुत बार देख चुके हो तो आई गेस बताने की जरूरत नहीं है, फिर से देख लेते हैं। आई यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फाइन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो मेरे पास वेरिएबल चीजें हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है, दैट इज m, सॉरी यहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मेरा कोई भी सम पॉसिबल नहीं है अदर देन 0, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो अगर मेरा सम भी 0 है तो इसकी नंबर ऑफ वेज 1, और ऑल अदर सम्स दैट इज फ्रॉम 1 टू n, ऑल अदर सम्स विल बी 0। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है या फिर यू कैन से कॉइन्स ही अगर मेरे 0 है, एक भी तरह के कॉइन्स है ही नहीं मेरे पास, तो मैं उससे कोई भी वैल्यू नहीं बना सकता, है ना। सेकेंड चीज, अगर मेरा सम 0 है, जो सम 0 का मतलब जो एलिमेंट मैं बना रहा हूं, जो टोटल मैं बना रहा हूं, अगर वही मेरा 0 है तो मुझे कितने भी कॉइन्स, कौन से भी कॉइन्स दिए गए हों, मैं उसमें 1 टू m सारी वैल्यूज 1 भर सकता हूं, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज 1 आ जाएगी, मुझे एक भी कॉइन नहीं यूज करना और 1 में, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, और डीपी ऑफ आईजे को अपडेट कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ लेट्स जस्ट सी द कोड, और उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है n इज
नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और वो नंबर ऑफ पॉइंट्स किसमें है, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे एस एरे में गिवन है, ठीक है, S1 S2 SM, फाइन। एन इज सम वी आर मेकिंग, टोटल सम जो हम बना रहे हैं, ठीक है। आई मैंने इंट डीपी ऑफ n+1 m लिया, ठीक है, जिसमें मेरा जो आंसर है वो किस चीज में स्टोर होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं इनिशियली बता रहा था, मैं पहले बता रहा था डीपी ऑफ आई जे, और यहाँ पे जे मेरा सम है, तो मैंने सिंपली रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा n+1 जो है रोज है वो मेरी सम है, और जो मेरे कॉलम है वो मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, फाइन। ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है, और इनिशियली मैंने पूरी डीपी एरे को 0 बना रखा है, तो मुझे 0 से इनिशियलाइजेशन नहीं करना है, मैंने खाली 1 से इनिशियलाइजेशन कर दिया, दैट इज जब मेरा सम जो है, ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा जूम कर लूं, जब मेरा सम 0 होगा तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ वेज सिंपली कितनी हो जाएंगी, सारे केसेस की 1, ठीक है, और मैंने वही किया यहाँ पे, ठीक है, फाइन। अब मैंने सिंपली सारी मुझे जितनी पॉसिबल वेज है सब अपडेट करनी है, तो मैंने 1 से n+1 तक लूप किया, और अब हर सम के लिए, करेंट सम i के लिए मैं टोटल देखूंगा कि कितने एलिमेंट्स का मैं यूज करके वो सम i बना सकता हूं, ठीक है। तो j = 0 से m तक मैं सारे एलिमेंट्स को चेक करूंगा। फिर करंट एलिमेंट को हम सिंपली, पहली कंडीशन तो क्या होगी, करंट एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, तो जो करंट सम है मेरा दैट इज i, अगर उससे मेरा जो करंट एलिमेंट है वो छोटा या बराबर है तो मैं उस एलिमेंट को यूज कर सकता हूं, एंड आई विल सिंपली ऐड दोज वेज इन माय आंसर। और डीपी ऑफ ij में मेरा क्या ऐड हो जाएगा, सिंपली ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर डीपी ऑफ ij में मान लो 7 था, मैं 7 बना रहा हूं, करंट एलिमेंट मेरा क्या है 4 है, ये si की वैल्यू है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मेरे पास 3 की ऑलरेडी है, तो मैं इसमें 4 जैसे ही ऐड करूंगा तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज किसके हो जाएंगे, 7 की, ठीक है। तो मैं इसमें सिंपली क्या ऐड कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सम 3, ओके। तो आई गेस ये चीज इजीली समझ में आ रही होगी। मैंने डीपी ऑफ 7 में मैंने सिंपली क्या ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सम 3, ठीक है। और दूसरी वेज, जब मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या ऐड करना है, डीपी ऑफ i j-1, है ना, i जो है वो सम है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सम तो मेरा चेंज होगा नहीं, सम उतना ही रहेगा, बस प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स को यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट j-1 एलिमेंट्स को यूज करके जितना मैंने सम बनाया था वो सारी वेज अब डीपी ऑफ ij में भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, फाइन। तो ये चीज से आपने अपडेट कर दिया अपनी डीपी एरे को, और लास्ट में आपको आउटपुट में क्या देना है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सम, या टोटल इज इक्वल्स टू n यूजिंग फर्स्ट m एलिमेंट्स। मैंने m-1 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3, तो अप टू m-1 इंडेक्स, फर्स्ट m-1 इंडेक्स तक टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग टोटल n, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। वन मोर थिंग कि मैंने आपको जब अनबाउंडेड नैपसैक पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई थी अनबाउंडेड नैपसैक में, ठीक है। तो आपका ये असाइनमेंट है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लीनियर स्पेस में कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ जो हम स्पेस ले रहे हैं इसमें, वो अपनी डीपी एरे कितने की बना रहे हैं, हम अपनी डीपी एरे बना रहे हैं सिंपली n+1 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था क्या, ब्रीफ में बताता हूं कि अनबाउंडेड नैपसैक है अगर, है ना, अनबाउंडेड नैपसैक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं हमको, क्योंकि तुमने करंट एलिमेंट को अगर ith एलिमेंट है मान लो और इनको इंक्लूड कर भी लिया है, ठीक है, तो तुम इस एलिमेंट को आगे भी इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या ये तुम्हारी ith एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम ये वाली जो स्टेट है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सेम प्रॉब्लम को डीपी ऑफ n+1 में कैसे करना है, दैट इज लीनियर स्पेस में। ये चीज मैंने आपको अनबाउंडेड नैपसैक में ऑलरेडी बता रखी है, तो जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन मोर।
thank you guys for watching this video. If you haven't gone to this newtonschool.co website, just go and check their grand coding contest, ठीक है, और apply application for September batch is also open. So अगर आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम में फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में एनरोल करना है, so you can just enroll in this program also. And thank you guys for watching. Just subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School. There are different playlists for you. Just go and check these playlists. Thank you guys for watching.